Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I am Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, सोनू सूद। धन्यवाद लालिमा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ उदयन रे। उदयन, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और अब हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रही हैं लालिमा अनीजा डैंग। Thank you, Sonu. Yes, the headlines. Equity benchmarks log gains of more than 0.7%. Sensex ends at 43,953. Nifty settles at 12,874. Rupee recovers 14 paise against the US dollar. And Brent crude rises supported by news of a second possible COVID-19 vaccine. शेयर बाजारों में 0.7% से अधिक का उछाल। सेंसेक्स 43,953 पर और निफ्टी 12,874 पर हुए बंद। रुपए में डॉलर के मुकाबले 14 पैसे की मजबूती हुई दर्ज। और कोविड-19 के दूसरे वैक्सीन की संभावना से जुड़े समाचार के बल पर ब्रेंट कच्चे तेल में आई तेजी। सबसे पहले शेयर बाजार, जहां निरंतर तेजी का सिलसिला जारी है। मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार आज 0.7% से अधिक की वृद्धि में रहे। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.72% की वृद्धि से 315 अंक बढ़कर 43,953 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.74% की बढ़त से 94 अंकों की वृद्धि दर्ज करता हुआ 12,874 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार में भी बढ़त का रुख था और यहां सेंसेक्स के मुकाबले अधिक वृद्धि रही। बीएसई मिड कैप सूचकांक 1.08% के उछाल में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक 0.88% की भारी बढ़त पर बंद हुआ। Domestic benchmark stocks today logged gains of more than 0.7% amid mixed global cues. The BSE 30 share index Sensex rose 315 points or 0.72% to settle at 43,953. NSE Nifty 50 index also added 94 points or 0.74% to settle at 12,874. The broader market at BSE also surged. Outperforming the Sensex, the BSE Mid-Cap Index climbed 1.08% and the BSE Small-Cap Index zoomed 0.88%. While in the Sensex pack, shares of 19 companies climbed while 11 declined. Tata Steel was the top gainer as it climbed 6.2%, followed by SBI, which gained 4.6%. HDFC Bank surged 2.8% and Bajaj Finance 2.6% and Axis Bank added 2.5%. On the other side, NTPC lost 2.3% while HCL and ONGC declined around 1.9%. In sectoral indices, 12 out of 19 sectors gained. In gainers, shares of the industrials climbed 2.9% and metal rose 2.1%. Capital goods, banking and finance surged around 2%. On the other hand, oil and gas declined 1.1%. Healthcare fell 0.7% and IT slipped 0.5%. The overall breadth of the BSE trade was positive as 1,565 shares climbed and 1,252 shares declined and 183 remained unchanged. Well, Udayan, if Sensex is a barometer of economy, well, probably this is it at 43,953. Can we say play on or buy on? Well, Lalima, the point is this, that, you would see some of the early reports from the European markets are the markets have taken a little bit of a breather. So it will not be an endless sprint ahead. And we obviously, investors will have to look at some of the stories. Right now, what we are witnessing is a
a bullish sentiment because there seems to be some information coming in and good information coming in, good news coming in that the COVID, which has been a spoiler for the past 8-9 months and in a big way, there seems to be a solution on the horizon. So as we had discussed in the past in the program, whenever this information would have come, this kind of an upsurge was expected, but this will not be an unlimited sort of a run. So we'll have to, investors will have to look at individual opportunities and look at things. उदिन, जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि मार्च के जो लोज है वहां से 70% से अधिक रिकवरी बाजार दर्ज कर चुका है और पिछले करीब 10 जो सेशन है उसमें बिना किसी ब्रेक के एक हम जो उछाल देख रहे हैं, इसके पीछे आपको कारण क्या दिखाई देते हैं? क्या जो इकोनॉमिक नंबर्स आए हैं खासकर अक्टूबर के लिए, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो जीएसटी को लेकर हो, ई-वे बिल्स को लेकर हो, पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग या पीएमआई सर्विसेज, ये सब जो उत्साहजनक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, क्या ये दर्शा रहे हैं कि शायद बेसिक इकोनॉमी में भी एक स्ट्रेंथ लौट रही है? बिल्कुल सोनू, ये हम काफी जो विश्लेषक है वो पहले जानने की कोशिश कर रहे हैं कि प्री कोविड लेवल के आसपास पहुंच रहा है कि नहीं। तो कई जगह में हम प्री कोविड लेवल के आसपास पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं पर थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, जैसे एक्सपोर्ट्स वगैरह में थोड़ा सा स्लिपेज हुआ है पर ओवरऑल जो है वो सबसे पहला बेंचमार्क या मानदंड ये है कि हम प्री कोविड लेवल के आसपास पहुंचे कि नहीं। तो कई ऐसे सेक्टर थे सोनू जहां पे बहुत ज्यादा एक्शन हो नहीं रहा, जैसे आप सिनेमा हॉल देख लीजिए, कई जगह में मान लीजिए एग्जीबिशन है, हॉस्पिटैलिटी है, ट्रैवल का हिसाब किताब है, ये बहुत बड़े सेक्टर्स हैं हमारे कंट्री में। तो यहाँ पे एक्शन नहीं हो रहा था, पर धीरे धीरे यहाँ पे आप एक्शन देख रहे हैं। तो अगर आपको मैं कंपैरिजन के हिसाब से बताऊं तो आप अगर चाइना की तरफ देखें तो लगभग वो मतलब प्री कोविड लेवल से आगे निकल गए हैं, मतलब वो प्रॉब्लम नहीं रहा है उनका। और वहां पे एक एक्सपेंशन अगर आप देखें आज आपके ऑयल स्टोरी में शायद आपके हेडलाइंस में हो या कहानी में हो या ना हो, वहां पे ये उनका जो डिमांड है वो प्री कोविड लेवल से आगे निकल गया। और चाइना में आप इस बार नेगेटिव जीडीपी नहीं पॉजिटिव जीडीपी ही को ही पाएंगे फाइनेंशियल ईयर में। तो फिर जैसे जैसे ये इस तरीके से आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आप मार्केट्स में भी वो रिफ्लेक्ट होगा और आप उसके बेनिफिट्स को भी पाएंगे। दूसरी बात कहता चलूं सोनू कि आपका जो कोविड की जो इन्फेक्शन हैं, जो उसकी जो खबरें आ रही हैं वो मोर ऑन द पॉजिटिव साइड की फ्रेश इन्फेक्शन बढ़ नहीं रही हैं, कम हो रही है। वो लोकल एरियाज जो है, कुछ इलाके हैं जैसे दिल्ली है, वहां पे इन्फेक्शन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, पर ओवरऑल जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ है। तो ये भी एक खबर है जो आपको हेल्प करता है। जब बुरी खबर, नो न्यूज, बैड न्यूज इज एक्चुअली बीइंग सीन एज गुड न्यूज। तो ये कुछ चीजें हैं जो ड्राइव कर रही हैं हमारे सेंटिमेंट्स को और हमारे नंबर्स को भी ड्राइव कर रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी ड्राइव कर रही है। अगर इन्फेक्शन नहीं होंगे और प्रॉब्लम लॉकडाउन नहीं होंगे तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी धीरे धीरे करके वापस आती चली जाएगी। Udin, we are broadcasting from a very urban place, but we know for a fact that there is a huge rural population which is there in our country and which was not so badly affected by the COVID. We know that tractors had great sales in the past few months, and so do you see the effect of how do you explain this phenomenon that rural side has done much better than the urban side? Well, Lalima, that's down to a very basic thing. For us to infect each other, we are not, one person is infecting the other. So for that, when you're staying very at nearby, in close proximity, which is typically what happens in industrial areas and where economic activity happens. People are staying at very close proximity. You're very near each other. There's a huge population that has to work every day. They cannot have an off. So when you have these kind of populations who are also maybe medically or physically vulnerable in some form or the other, so there this impact happens. But in a rural area where things are spread out, even you can see this in individual states in northern India, southern India, everywhere in India, where things are spread out,
people are not, bunched up together, bottled up together, packed up together, there the economic activity has not impacted. But Lalima, the point is that is not where the industrial activity happens. Industrial activity will be happening where you need a lot of people, a lot of workers, a lot of support staff and all that. Everything cannot be done from work from home, Right. So that is where the impact has been, and that is where we will remain vulnerable till a delivery of vaccine or whatever is the therapeutic happens, an effective one. And that is not going to happen at a super speed. But, as we get the remedies of this pandemic to our frontline staff, and get better equipment and be better prepared, that is when that whole punishing lockdown we have, that is when we are going to get that dividend, and which I think we are already beginning to get that. We are clearly seeing it. You're not seeing the kind of horrific scenes at our hospitals everywhere. Yes, there are spots and there are areas, and let's not also forget ours is a huge, large country with a huge population. Yes. Given that, I think we have acquitted ourselves very creditably. उदयन, जैसा आप कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, इनमें कई ऐसी इकोनॉमी के सेक्टर्स होते हैं या कहीं क्षेत्र होते हैं जहां पर वर्क फ्रॉम होम संभव नहीं होता है, और कोविड की सिचुएशन को देखते हुए बहुत सारी प्रिकॉशंस लेकर ही काम आगे बढ़ रहा है। लेकिन जो सरकार के द्वारा जो टारगेटेड अप्रोच लिया जा रहा है, इसके बारे में आपकी टिप्पणी चाहेंगे। जो लेटेस्ट स्टिमुलस, थर्ड स्टिमुलस आया है, उसमें जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स हैं वो 10 सेक्टर्स के लिए, स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है, या 26 जो कोविड हिट सेक्टर्स की आप बात कर रहे थे उनको आइडेंटिफाई करके उनके लिए इजी वर्किंग कैपिटल लोन्स का जो प्रोविजन किया गया है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को एक्सटेंड किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि सरकार द्वारा जो कदम हाल में उठाए गए हैं वो जो टारगेटेड अप्रोच है वो शायद और ज्यादा कारगर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, और ये जो क्रेडिट गारंटी के बारे में आपने जिक्र किया, ये तो बिल्कुल करना ही था और सरकार ने किया, तो विच इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। और जैसे जैसे डायनामिक, जैसे सोनू, इसमें दिक्कत ये है, ये करंट पैंडेमिक सिचुएशन में दिक्कत ये थी कि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। ये एक चीज पैंडेमिक में जो वायरस है इसके बारे में हम लोग सब अभी हम डिस्कवर कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होता है। इसमें कोई प्लेबुक नहीं था जिसको हम फॉलो करते, एटलीस्ट इंडिया में तो था नहीं, ठीक है। इट वॉज लाइक समथिंग आउट ऑफ द बोल्ट, इट वॉज लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो इसलिए इसमें धीरे धीरे करके तो इसमें टारगेटेड अप्रोच, अपने टारगेटेड अप्रोच की बात की, और ये ही करना था, क्योंकि आप सोचिए आपके पास एम्यूनिशन लिमिटेड है और उसमें आप बेतहाशा फायरिंग नहीं कर सकते। आपको लक्ष्य को देखना पड़ेगा, फिर फायर किया, फिर आपने मूविंग, और ये एक मूविंग टारगेट की तरह है। जैसे जैसे आपका सिचुएशन डेवलप होगा वैसे वैसे सरकार अपनी एम्यूनिशन इस्तेमाल करेगी, और यही करना था। अब इस पर डिबेट किया जा सकता है कि कब इफेक्टिव था, नहीं था, पर इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अगर जब आप इफेक्टिव होंगे नहीं या आप ज्यादा कारगर होना चाहते हैं तब पॉलिसी को ट्वीक कर सकते हैं। और ये जब भी क्राइसिस होता है या ऐसी सिचुएशन आती है, ये परफेक्ट होता है रिफॉर्म करने। जो चीज आप पहले नहीं कर सकते थे, हो सकता है आप 5 साल में नहीं कर सकते थे, वो आप 5 या 6 महीने में कर सकते हैं। और ये पैंडेमिक ने ये दिखा दिया, क्योंकि सरकार को प्रोएक्टिव होना था, सरकार प्रोएक्टिव है। अब ये डिबेट किया जा सकता है कि इससे ज्यादा हो सकता है कि नहीं, ये अलग बात है, पर ये एक बहुत अच्छा मौका था एंड सरकार को प्रोएक्टिव दिखना था और होना था। और मेरे हिसाब से सरकार ऐसी इस कसौटी में खरी उतरी है ब्रॉडली। All right, thank you. Then stay tuned, friends, and then we'll go in for a short commercial break and shall be back very soon. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पैसा पैसा जोड़ के बन जाए रुपया। सिंपल है छोटे, कि इन्वेस्टमेंट थोड़े से पैसों से भी शुरू हो सकता है भैया। ओहो, तो ये बात है। हाँ छोटे, आज थोड़े से पैसों को सही जगह लगाएंगे तो कल जरूरत के वक्त पर वही काम आएंगे। बड़े भैया छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। All right, welcome back. You're listening to Market Mantra. Hello, Udyan. Yeah, tell me. When Sonu was talking about various, multiple signs of recovery,
What about exports and imports? We know that exports have risen by 6% to $27.6 billion in September, and imports have fallen, and the trade deficit has narrowed sharply to $2.7 billion. Is that any solace? And where, does it reflect anything? Well, Lalima, the exports are going to be a challenge. There are two reasons. One is that, as you know, in Europe and in US and North America, there's this third wave of the infection hitting. So that there is an apprehension as to how much that is going to affect normal life. And it is not going to be normal. It's pretty certain for the next 5 or 6 weeks. Now, how much of a dent it is going to make, nobody's going to talking about the wholesale lockdowns and stuff like that. But it will make a difference out there. Second is, United States, of course, is a big market for us as far as exports is concerned. There, a lot of people are waiting for another stimulus. So that, again, will be another milestone or event that people are waiting, markets are waiting for. If that happens, any news which will show that event is going to happen will actually boost the markets, boost our exports and everything. And if it doesn't happen, it gets stalled or whatever, then it will be a problem. Christmas is a huge period. This period is a huge buying period for people in the West. Now, a lot of our exports, I suspect, would be depending on this. So exports to come back will be like two steps forward, one back. Like in China, we all the agri and some of the other products that we are sending and other countries are sending, they are being subjected to a lot of inspections, virus-related inspections, and there is a lot of resentment out there. So these are the kind of dynamics that's working. So sometimes you'll see the numbers going up nicely and you're feeling confident. Maybe in the next period, say the next month, you're not feeling that good. So it's not going to be a very smooth kind of a curve moving up, Udayan, agar hum please continue. So it's going to be kind of muted. It's going to be kind of jagged kind of a curve. So that's something that's what I expect. उदयन, अगर हम कंपनीज की बात करें, कंपनीज की परफॉर्मेंस की, तो एक इंडस्ट्री सर्वे के अकॉर्डिंग भी भारत में नेट सेल्स 25 से 30% बढ़ी हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर सितंबर क्वार्टर में, और जो WPI के लेटेस्ट फिगर्स आए हैं उसमें कोर इन्फ्लेशन बढ़ी है 1 से 1.7% हो गई है, विच इज एन 8-month हाई, एंड विच सम इकोनॉमिस्ट से इट इंडिकेट्स की डिमांड में वृद्धि हुई है. तो आपको क्या लगता है कि अभी जो हम ये उत्साहजनक एक आंकड़ों का सिलसिला देख रहे हैं, क्या ये सिर्फ पेंट अप डिमांड है जैसे कहा जा रहा था कुछ समय तक, सिर्फ फेस्टिव बाइंग की वजह से है, या ये इंडिकेट कर रहा है कि नॉर्मलसी की तरफ हम रिटर्न कर रहे हैं? देखिए, दोनों चीज ही हैं. इससे दो पॉजिटिव्स हैं, एक नॉट सो पॉजिटिव है. एक तो है पेंट अप डिमांड, जिसके बारे में आपने जिक्र किया. मैं पहले खरीदना चाह रहा था पर मैं खरीद नहीं पा रहा था, दुकानें नहीं खुली थी या मेरे को सेफ नहीं लग रहा था वगैरह वगैरह. एंड आई वाज आल्सो नॉट, मेरे को भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरी नौकरी रहेगी या मेरे इनकम रहेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी कि नहीं अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है. तो ये एक सिचुएशन था. दूसरा है कि जो एक एम्प्लॉयमेंट में जो एक स्टॉलिंग आया था, एक लॉस हुआ था कई जगह में, जो वर्कर्स, जो एम्प्लॉयज आप कहें, जिनकी नौकरियां गई थी या नौकरी में पेमेंट नहीं मिल रहा था, आपको पे नहीं मिल रहा था, तो उसमें एक रिबाउंड तो हुआ है. वो आप हर कंट्री में, आप हर देश में देखेंगे वो रिबाउंड हुआ है, और हमारे देश में बहुत जबरदस्त रिबाउंड हुआ है. तो कई जगह में क्या हुआ था, लोगों को चिंता थी वो रिबाउंड परमानेंट लॉस ऑफ जॉब्स तो नहीं होगा, पर वो रिबाउंड क्या वो पूरा हुआ? मुझे नहीं लगता वो पूरा हुआ है. तो ये दो बातें तो आपकी पॉजिटिव है कि यहाँ पे बीच में जो स्टॉल हो गया था कि आपको पे नहीं दिया जाएगा 2 महीने या 3 महीने, वो प्रॉब्लम अब सॉल्व होती गई, लोगों को दूसरी नौकरियां मिल गई हैं, पर वो डैमेज जो वो पूरा नहीं हुआ वो पूरा होगा. ठीक है. अब सवाल उठता है कि ये जो पेंट अप डिमांड था, ये क्या आगे बढ़ेगा? और अगर लोगों को लगता है, चिंता होगी कि आगे चल के उनकी नौकरियों पर खतरा है, प्रेशर है, तब तो शायद वो ना करें. तो उनकी कंजम्पशन बिहेवियर आपके बिग टिकट परचेसेस में हो सकता है कि मॉडरेशन रहे,
पर ये नेट जो अभी जो सेंटिमेंट है, जिस तरीके से आप डेटा देख रहे हैं, उसमें ये लगता है कि ये आपकी रिकवरी होगी, पर एक स्लो, बिल्कुल जैसे ट्रैम्पोलिन में होता है। अब सर्कस में देखते हैं कि ऊपर से गिरता है, वो बाउंस करके ऊपर की तरफ उड़ जाते हैं, जो भी होते हैं सर्कस के आर्टिस्ट। ये ट्रैम्पोलिन वाला नहीं होगा, ये एक मोर सबड्यूड बाउंस होगा। तो वो आपके जो बाउंस बैक होगा वो जबरदस्त बाउंस उछाल नहीं होगा। आप तो अगर प्री कोविड लेवल तक ही पहुंच जाते हैं अगले कुछ महीनों में हर इंडिकेटर से, वो काफी अच्छा है, कोई बुरी बात नहीं है। और आपको ये देखना है कि आपके परमानेंट डैमेज ना हो। पर ये जो अगले 2 महीने हैं उसमें जो डेटा है उसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा सोनू, कि अगर वहां पे भी ये दिखता है कि ये ऐसे चल रहा है फिर तो ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आपके रूरल एरियाज में उतनी नहीं होगी जितनी आपको डेटा जो आपके अर्बन सेंटर्स हैं वहां से आपको देखना पड़ेगा कि वहां पे क्या हाल है, क्योंकि वहां पे वो एग्रीकल्चर रिलेटेड इनकम नहीं है। आपकी मैन्युफैक्चरिंग, आपकी सर्विसेज हैं, वो कैसे परफॉर्म कर रही हैं और वो सस्टेन कर पा रही कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सरकार का जो ये तीसरा पैकेज है वो इम्पोर्टेंट है, वो टारगेटेड है, जैसे आपने कहा टारगेटेड है, कि ताकि वो बूस्ट मिले, ठीक टाइम पर बूस्ट मिले और आगे बढ़े। और एक और जो मैट्रिक आया है उस पर आपकी टिप्पणी चाहेंगे। ग्लोबल लिक्विडिटी यानी जो एफपीआईज हमारे बाजारों में, पूंजी बाजारों में निवेश करते हैं, वो नवंबर में अभी तक 30,000 करोड़ को क्रॉस कर गया है, जबकि पूरे अक्टूबर में 22,000 करोड़ था। सो ये जो उत्साह दिखा रहे हैं एफपीआईज हमारे बाजारों में, क्या वो एक उनकी तरफ से भरोसा भी दर्शा रहा है हमारी इकोनॉमी में, हमारे आगे के प्रोस्पेक्ट्स में? ये इसको सोनू कई लोग एक्सपर्ट से यील्ड हंट बोल रहे हैं कि आप ज्यादा रिवॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि वेस्टर्न वर्ल्ड में जो है आपको जो इन्वेस्टमेंट्स का रिटर्न उस दर्जे का नहीं है जो हमारे इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया में होता है। तो सवाल ये उठता है कि हमारे देश में को रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखा जाता है। मान लीजिए कोविड के टाइम में हम बहुत रिस्की नजर आते होंगे, इसलिए पैसे वापस जा रहे थे, ठीक है। अब अगर मामला संभल रहा है, इंफॉर्मेशन आ रहा है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात चेंज जो आई इंफॉर्मेशन है, मालूम चल रहा ठीक है ये ऐसा हो गया था, अब ये ठीक हो रहा है, तो इसकी वजह से लोगों में रिस्क एपेटाइट थोड़ा सा बेहतर हुआ है। दूसरी बात अमेरिका के बारे में बात करते हुए चलेगी, जहाँ के इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वहां पे ये राष्ट्रपति चुनाव सेट होने के बाद, इसका रफली रिजल्ट निकलने के बाद लोगों में वो कॉन्फिडेंस आया, उन्हें लगता है कि स्टिमुलस होगा। आपके जो मॉनेटरी अथॉरिटीज है, सेंट्रल बैंक है, वो भी एक अकोमोडेटिव स्टांस लेगी। तो इससे क्या होगा, आपको मालूम कि जो लिक्विडिटी का जो पंपिंग है, जिसकी वजह से एक जो हाई टाइड बनाता है, जिससे आपके सारे बोट्स ऊपर उठ जाते हैं, तो वो भी बरकरार रहेगा, तो उससे भी कॉन्फिडेंस मिले। तो ये काफी कुछ लिक्विडिटी ड्रिवन भी है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं मेरे हिसाब से जो कि एट प्ले। आपने बात की इंटरनेशनल फैक्टर्स की, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एशियाई बाजार में आज रुख मिला जुला रहा। हालांकि एक और कारगर कोरोना वायरस वैक्सीन की संभावना से जुड़े समाचारों के बीच निवेशकों की धारणा सकारात्मक ही बनी रही। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 1.1% बढ़ गया। जापान का निक्केई 0.4% की वृद्धि में रहा और हांगकांग के हैंगसेंग में 0.1% की मामूली बढ़त दर्ज हुई। लेकिन दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक प्रत्येक 0.2% के नुकसान में रहे। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में यहां गिरावट का रुख था। लंदन का फुटसी 1.1% के नुकसान पर था, जबकि फ्रांस का कैक और जर्मनी का डैक्स दोनों 0.3% की गिरावट पर थे। A look at the U.S. markets now. Well, the Dow hit a record high yesterday after Moderna became the second U.S. company in a week to report positive results from its COVID-19 vaccine trial, raising hopes of a quicker economic recovery from a pandemic-led recession. The Dow Jones Industrial Average surged 1.6%, the S&P 500 climbed 1.2%, and the Nasdaq Composite Index fell 0.8%. Well, a bit of a dichotomy here that U.S. hard hit with COVID cases, probably the worst in the world, and economy doing very badly, but China's economy doing very well. What do you think about this? Well, as I mentioned earlier, you will find China, in fact, if you look at the petroleum demand, China's petroleum demand has increased, actually increased beyond COVID levels. So that's showing a lot of economic activity, and they're talking about
the whole stance being of less than accommodative now. They don't need to really give it a boost right now. So that's what people are talking about. Lalima, the point here is with US is the number one economy and it is doing far better than people had expected. So because as an economy, they have their institution, they've got the capital, they've got the manpower, they've got the right rules, the ease of doing business is pretty good. So, you've got the whole infrastructure is there for the recovery to happen and it's happening faster. To give you a point, somewhere around May, they had an unemployment rate of about 15%. Maybe 14 or 15%. By the time the election was happening, it was at 6.8%. Now that is exactly the rate at which which was there at 2012 when the Obama second term was about to begin. So that is where they have reached in just a couple of months. So it's been much faster, and things have. So what possibly they're talking about, they will reach that pre-COVID level somewhere around 2022 early or so. So it's going to happen fast. But if somebody was expecting this whole thing to get over in say 3 or 4 or 5 months, it's not going to happen. But what you're going to see is China is going to be growing pretty nicely and well in a good clip. But you will see the US will get back onto its feet in very, very quick time. आइए अब चलते हैं करेंसी बाजार की ओर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 14 पैसे की मजबूती दर्ज करता हुआ 74 रुपये 46 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। दूसरी तरफ 6 प्रमुख मुद्राओं के समूह की तुलना में अमरीकी डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 31% के नुकसान से 92.36 पर था। एक आपकी छोटी सी टिप्पणी चाहेंगे कि अमेरिका में जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए हैं उससे इंडिया से ट्रेड टाइज में क्या फर्क पड़ेगा, अगर आप 30 सेकंड में बता सकें तो। सोनू, मुझे नहीं लगता कि बहुत अभी इसमें क्लैरिटी है, क्योंकि पीछे राष्ट्रपति ट्रंप का एक नजरिया था। नए प्रशासन का कैसा नजरिया होगा, चीन के साथ कैसा होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कई ट्रेड एग्रीमेंट से राष्ट्रपति ट्रंप निकल गए तो काफी कुछ उनकी पॉलिसी पे डिपेंड करेगा, फिर भारत के साथ हिसाब किताब बनेगा। And now look at the gold prices. Oil, all right. Oil prices today edged up, helped by expectations that OPEC and its allies would tighten supplies next year and supported by news of a second possible COVID-19 vaccine. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $43.80 per barrel, while WTI crude prices were around $41.30 per barrel. Oil has always been a bit of a paradox. सोने पे नजर डाल लेते हैं, फिर अगर समय बचेगा तो। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 50,114 रुपए प्रति 10 ग्राम पर लगभग ज्यों का त्यों बना रहा। चांदी भी 451 रुपए के उछाल से 61,572 रुपए प्रति किलो पर जा पहुंची। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1,886.80 प्रति आउंस पर और चांदी $24.74 प्रति आउंस पर। क्या मैं फ्रेड समय समाप्त हो गया है लालिमा, हमें चर्चा को भी यही समाप्त करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद उदयन आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। And now the headlines. Well, equity benchmarks log gains of more than 0.7%. Sensex ends at 43,953. Nifty settles at 12,874. Rupee recovers 14 paise against the US dollar. And Brent crude rises supported by news of a second possible COVID-19 vaccine. And with that, we end this edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra.